چکوال میں 450 ملی میٹر، راولپنڈی اسلام آباد میں 240 ملی میٹر بارش، ندی نالے بپھر گئے، نشیبی بستیاں ڈوب گئیں، سیلابی ریلے گلی محلوں تک پہنچ گئے، راولپنڈی میں دریا سواں میں طغیانی قریبی آبادیاں زیر آب آ گئیں، ددوچا ڈیم کی طرف آنے والا نالا بھی بپھر گیا، پانی قریبی آبادیوں میں داخل، شاہپور اور راولپنڈی اسلام آباد کو ملانے والا پل زیر آب آ گیا، نالا دئی میں پانی کی سطح 23 فٹ ہونے پر کٹاریاں اور گوال منڈی میں لوگوں کو انخلا کی وارننگ، پاک فوج نے چکری اور لانیہ میں سیلابی ریلوں میں پھنسے کئی افراد کو ایئر لفٹ کیا، کشتیوں کے ذریعے بھی محفوظ مقامات تک پہنچایا، اسلام آباد میں کئی مکانوں کی بیسمنٹ پانی سے بھر گئیں، بڑی امام کے مزار کے اطراف میں لینڈ سلائیڈنگ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عوام کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت، کامیاب ریسکیو آپریشن پر پاک فوج اور ریسکیو اداروں کو خراج تحسین، این ڈی ایم اے کی حساس علاقوں کے مکینوں کو 3 سے 5 دن کی خوراک، پانی اور دواؤں کا انتظام کرنے کی ہدایت، پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حادثات میں 54 افراد جاں بحق۔ چکوال میں 450 ملی میٹر بارش کے بعد فلڈ ایمرجنسی نافذ، دھراوی کے مقام پر بنایا گیا چھوٹا ڈیم ٹوٹ گیا، سیلابی ریلا قریبی آبادی میں داخل، متعدد سڑکیں ریلوں میں بہہ گئیں، کوہالی پل کو نقصان پہنچا، کچھ حصہ بہہ گیا، درجنوں دیہات کا شہر سے زمینی رابطہ کٹ گیا، کٹاس راج مندر بھی ڈوب گیا، چکوال شہر سے پانی کا نکاسی کر لی گئی، شہر میں معاملات زندگی بحال، جہلم میں موسلادھار بارش کے بعد سیلابی ریلے میں سڑکیں بہہ گئیں، سیلابی ریلے میں پھنسے 6 پولیس اہلکاروں کو بچا لیا گیا، 1 لاپتہ اہلکار کی تلاش جاری، متاثرین کے لیے امدادی کیمپ بھی قائم، ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب میں پھنسے مجموعی طور پر 70 افراد کو ریسکیو کیا گیا، راولپنڈی میں شدید بارش کے بعد مرکزی شاہراہیں کلیئر کر دی گئیں، پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے تحت ڈیمز، دریاؤں، تالابوں، جھیلوں میں تیراکی پر پابندی عائد، گلیوں، سڑکوں، کھلی جگہوں یا عوامی مقامات پر بارش کے پانی میں نہانے پر بھی پابندی کا اطلاق 30 اگست تک ہوگا، سندھ میں آج رات سے بارش کی پیش گوئی، بارشوں کا سلسلہ آج دادو سے شروع ہوگا، کراچی تک 19 جولائی کو پہنچے گا، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں مزید بارشوں کا امکان۔ یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے، پریڈکشن ہے کہ آئندہ انٹینسٹی بڑھے گی۔ آئی تھنک وی ہیو ٹو پٹ آور ایکٹ ٹوگیدر اینڈ ڈو ایوری تھنگ ٹو مینیمائز دی ڈیمیجز آؤٹ آف دیز آؤٹ برسٹ۔ کلاؤڈ برسٹ ہونے سے غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے، آئندہ بھی ایسی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاق صوبوں اور این ڈی ایم اے کو مل کر صورتحال سے نمٹنے کی ہدایت کر دی، نیشنل ایمرجنسی سینٹر آمد پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کا ماحولیاتی تبدیلیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن پھر بھی بدقسمتی سے متاثرہ ممالک میں پاکستان کا نمبر بہت اوپر ہے، صوبے تیاری کے ساتھ صورتحال سے نمٹ رہے ہیں، موجودہ بارشوں کے دوران پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں اقدامات کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے نقصانات کم ہوئے، وزیر اعظم کا مختلف حادثات میں جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار، این ڈی ایم اے کی بریفنگ میں بتایا گیا 30 سے 40% زیادہ بارشیں ہوئیں، ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر کارروائیاں کر رہے ہیں، شہریوں کو سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ پانی کہیں کھڑا نہ ہو، میرا خیال ہے یہ اب خیالی پلاؤ تو بنا سکتے ہیں لیکن ایسی کوئی حقیقت نہیں، پانی ضرور کھڑا ہوا کچھ دیر کے لیے ہوا، لیکن انتظامیہ ریلیٹیولی اچھا کام کیا، لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہے۔ ایک طرف شہریوں سے معذرت، دوسری طرف انتظامیہ کی تعریف، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حیدرآباد میں حالیہ بارشوں سے شہریوں کو درپیش مشکلات پر معذرت کر دی، ساتھ انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کی محنت کو بھی سراہا، کہا کچھ علاقوں میں اب بھی بارش کا پانی موجود ہے، حیدرآباد میں بارش کے بعد مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، بارش کا پانی پمپ سے ہی نکلنا پڑتا ہے، وزیر اعلیٰ کی ضلع انتظامیہ کو بارش کے پانی کی نکاسی، صفائی کا کام تیز کرنے کی ہدایت، حیدرآباد کی ریلوے کالونی سے 4 روز بعد بھی برساتی پانی کا نکاس نہ ہو سکا، مکی شاہ روڈ، نارا جیل کے علاقے سمیت دیگر میں کیچڑ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، دریائے سوات میں ڈوبنے والے 17 سالہ عبداللہ کی لاش 21 روز بعد بری کوٹ کے مقام سے مل گئی، ترجمان ریسکیو کے مطابق اہل خانہ کی جانب سے شناخت اور تصدیق کے بعد میت سیالکوٹ ڈسکا روانہ کر دی گئی ہے، نوجوان کی تلاش کے لیے دریائے سوات میں مسلسل سرچ آپریشن جاری تھا، 27 جون کو دریائے سوات میں 17 افراد ڈوب گئے تھے جن میں سے 13 افراد جاں بحق ہو گئے تھے جبکہ 4 کو بچا لیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی اسمبلی اجلاس 20 جولائی کو بلانے کی سمری پر دستخط کر دیے، سمری گورنر خیبر پختونخوا کو بھیج دی گئی، ذرائع کے مطابق اجلاس میں مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف لینے کا امکان ہے، کے پی حکومت اور اپوزیشن نے بلا مقابلہ سینٹ انتخابات پر اتفاق کر لیا، خیبر پختونخوا میں اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر عباد اللہ نے تصدیق کر دی، کہا حکومت کو 6 اور اپوزیشن کو 5 نشستیں ملیں گی، حکومت نے ہمارے فارمولے سے اتفاق کر لیا ہے، کچھ ایشوز تھے وہ بھی دور ہو گئے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशिस्त पर नून लीग JUI के हक में दस्तबरदार। कुरानंदाजी के बजाय फैसला फाहमो तफहीम से हो गया। अक़लियती नशिस्त JUI के गुरपाल सिंह को मिल गई। फैसला वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान और दोनों पार्टीज़ की मुशावरत से किया गया। अमीर मुकाम का कहना है कि नून लीग अपोजिशन की बड़ी पार्टी होते हुए भी बिला मुकाबला इंतखाबात के लिए कुर्बानी दे रही है। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर टॉस ANP ने जीत लिया। ANP की शाहिदा वहीद रुकन KP असम्बली मुंतखब। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTIP के दरमियान टॉस हुआ था, जहाँ में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक़ राय हो गया। हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के इजलास में ऐवान में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल न करने पर इत्तफाक़। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। इत्तफाक़ राय हुआ है कि लीडर ऑफ दी अपोजिशन की ऐवान तकरीर के दौरान नारेबाजी नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिताब के दौरान भी एहतजाज नहीं होगा, नारे लगेंगे। मुअत्तल 26 मेंबरान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। माहिदे की खिलाफ वर्जी होगी तो उसकी सज़ा का तयन एथिक्स कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि छोटे किसानों को सहूलियात देना अव्वलीन तरजीह में शामिल है। ज़रई तरक्की से मुताल्लिक़ इजलास में कहा 12 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को ज़रई सहूलियात फराहमी तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के किसानों को आसान शराइत पर कर्ज़ों के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। कहा पाकिस्तान की तरक्की ज़रई शोबे और किसानों की पैदावार की वैल्यूएशन से मशरूत है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने चीनी के शोबे को डी रेगुलेट करने के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। मीठी शुगर सेक्टर में इस्लाहात निजकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी। वज़ीर तवानाई कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी 30 रोज़ के अंदर वज़ीर आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। एक और इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताख़ीर का शिकार मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुकम्मल और ज़ेर तकमील मनसूबों में आला मयार यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन की भी हिदायत। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की काबुल में अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखून से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन सलामती, तिजारती राहदारी, ताउन और इलाक़ाई राबतों पर गुफ्तगू। इसाक़ डार की अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तसलसल पर जोर। इसाक़ डार की अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से भी मुलाकात। इन दोनों मुलाकातों में तिजारत, ट्रांजिट, सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। चीनी मजीद महंगी होगी। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान माहिदा तय पा गया। एक माह तक चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। अगले 3 माह तक चीनी की एक्स मिल कीमत हर माह 2 रुपए फ़ी किलो बढ़ाने का फैसला। आइंदा 3 माह में चीनी की एक्स मिल कीमत 165 से बढ़ाकर 171 रुपए किलो करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ने मुआहिदा किया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के एजाज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का इशाया। जजेस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, जुडिशल अफसरान और वकला की कसीर तादाद तकरीब में शरीक। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार तकरीब में शरीक। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस एजाज इसाक़ खान और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ तकरीब में शरीक नहीं हुए। जस्टिस मोहम्मद आसिफ सालाना छुट्टियों के बाद शरीक न हुए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार मौसम गर्मा की छुट्टियों पर हैं। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में इमारत की 6ठी मंजिल की छत गिर गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 4 जख्मी। DIG साउथ का कहना है कि बिल्डिंग का 6ठा फ्लोर 5वीं मंजिल पर गिरा। छत गिरने से जाँ बहक होने वाली दोनों खवातीन बहनें हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा लियारी समेत कराची भर में खतरनाक इमारतों को फौरी खाली कराया जाए। इंसानी जानें कीमती हैं। इमारतों की स्ट्रक्चरल जांच पड़ताल की जाए। फलात में मुसाफिर बस पर फायरिंग का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी के दिफात शामिल। फायरिंग से जाँ बहक 3 अफराद की मैयतें और 5 जख्मी कराची मुंतकिल। जाँ बहक अफराद में कव्वाल माजिद साबरी का भाई और भतीजा भी शामिल। माजिद साबरी ने बताया कि बस में कव्वाल ग्रुप के 17 अफराद सवार थे। इंसानी हुकूक कमीशन की कव्वाल टीम पर हमले की मजम्मत, हमले की फौरी तहकीकात का मुतालबा। कहा ऐसे बुज़दिलाना हमलों का कोई कानूनी जवाब नहीं। कव्वाल टीम शादी की तकरीब में परफॉर्म करने कराची से कोयटा जा रही थी। बस पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए। तालकाना चांडका अस्पताल के ऑर्थोपीडिक वार्ड में फायरिंग से मियाँ बीवी जाँ बहक और खातून जख्मी हो गई। जख्मी होने वाली खातून ने फायरिंग करके एक मुलजिम को जख्मी कर दिया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 3 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। जामिया कराची के प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी से बदसलूकी करने वाले रेंजर्स एहलकार को मुअत्तल करके कार्रवाई के अहकाम दे दिए गए। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची के एलामे में कहा गया है कि रेंजर्स के सेक्टर कमांडर ने प्रोफेसर आफाक से मुलाकात की। मुलाकात में रेंजर्स के आला अहदेदारों ने वाक़े की शदीद मजम्मत और माज़रत भी की। यकीन दिलाया मुलविस एहलकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची डिफेंस
फेज 6 में फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की बिल्डिंग इंतजामिया चौकीदार और साबिका घरेलू मुलाजमा शामिल तफ्तीश। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक तमाम लोग अक्टूबर 2024 तक हुमैरा असगर से राबते में थे। लगता है हुमैरा असगर माली तौर पर परेशान थी। हुमैरा ने सितंबर 2024 में आखिरी कमर्शियल शूट किया था। काम से मुताल्लिक अक्टूबर 2024 में लोगों से राबते में थी। फ्लैट के बाहर और अतराफ में CCTV कैमरे नहीं हैं। फ्लैट के मरकजी दरवाजे की 3 चाबियां फ्लैट के अंदर से मिली हैं। कराची के इलाके सईदाबाद से गुज़िश्ता साल अगवा किया जाने वाला 4 साल का बच्चा बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई में मुलजिम, उसकी बीवी और वालिदा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान आस्थाने अमलियात का ढोंग रचाते थे। जो लोग उनके यहाँ आए थे उनके बच्चों को अगवा करते थे। बच्चों के घर वालों से 2 लाख रुपए लेकर बच्चों का पता बताते थे। PTI के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अलीमा खान ने पूरी PTI क़यादत की बेइज्जती कराई। अलीमा खान वर्कर्स और लीडर्स को तंग करके प्रेशर में लाती हैं। उनके पास बेहतरीन मौका है, वो खुद तहरीक चलाएं। ख्वाहिश है अलीमा खान और उनके बच्चे बानी PTI की रिहाई की तहरीक को लीड करें। अलीमा खान ने पश्तूनों के बच्चों को तहरीक चलाने का कहा, अपने बच्चों को बरतानिया भेजा। ये कहाँ का इंसाफ है? अपने बच्चे बरतानिया चले जाएं, दूसरों के बच्चे तहरीकें चलाएं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्हें बानी PTI से दूर करने में अलीमा खान, सलमान अकरम, शिबली फराज का किरदार है। सलमान अकरम राजा अपने आप को क्लास का मॉनिटर समझते हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गवर्नर सिंध कामरान खान बिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान बिसोरी ने कहा कि अगर तरक्की की राह पर गामजन होना है तो बेटियों को बराबरी के हुकूक देने होंगे। मुल्क में बेटियों की तादाद 50% है तो उनका हिस्सा भी 50% होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का अब्दुल्ला अयूब को SMIU का पहला PhD स्कॉलर बनने पर खराज तहसीन। कहा, SMIU ने तालीमी मयार और तहकीक में नई मिसाल कायम की। रियासत आसाम की अदालत का अनोखा फैसला, एक शख्स को हर सुबह 3 बार जय हिंद कहकर उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की हिदायत कर दी। आरिफ रहमान नामी इस शख्स पर पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तारीफ करने पर मुकदमा दायर किया गया था। आरिफ रहमान की जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जज ने उसे हिदायत की कि वो 21 रोज तक हर सुबह 3 बार जय हिंद बोलकर रिकॉर्ड करे और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करे। जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से ढाका में ट्रेनिंग शुरू करेगी। दोनों टीम्स के कप्तान हफ्ते को ट्रॉफी की रुनमाई करेंगे। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने सीरीज के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। लिटन दास क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज मीरपुर में खेली जाएगी। पहला मैच इतवार को खेला जाएगा। फाइनल में जारी एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल 5वीं कामयाबी। पाकिस्तान ने दिफाई चैंपियन ईरान को 3-1 से हरा दिया। पाकिस्तान पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। सेमीफाइनल में ग्रुप F की टॉप टीम पाकिस्तान, ग्रुप C की सेकंड टीम भारत से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ ने भारत के मनन चंद्रा को शिकस्त दी। उनसे कबल अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हुसैन अख्तर ने बेस्ट ऑफ 7 के सेमीफाइनल में पोलैंड के ऑलिवर को शिकस्त दी। पाकिस्तान के नामवर गुलकार शहंशाह गजल मेहदी हसन के मद्दाह आज उनकी 98वीं सालगिरह मना रहे हैं।